Continue. Yeah, good afternoon, everyone. I hope forenoon session was fruitful. And basically, when you work on GEM, then only you will get the actually usefulness of this one. Otherwise, theoretical knowledge may not be fruitful at all. And now, as GEM has lot of features, so we have to utilize each and every one. And now, as this procurement through GEM is necessary and mandatory, I think. So everyone will eventually come to know about all the features. So basically, in this session, I will create a manpower bid, we create in supervisory support service, hiring of MTS, hiring of PO, hiring of security guard, security of this one watch and ward services. So I will share first of all one PDF of created bid, and after that we will create one demo bid for this purpose. And in the meantime, you can have question also, because through question answer we come to know many things. ये वाला ना हम जानते थे कि डेंजर है। नहीं हाँ Relic को basically Meanwhile, if anyone wants to ask any question, you can raise. Okay, I think our speaker is trying to share the content. Okay, carry on, sir. Carry on. I think this screen is visible to all now. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. So this is for basically first timer. I would like to demonstrate all the feature. Those who have already gone through it, they may ignore it. But first of किसी को पूछना है कुछ? Yeah.
When you create a bid on GEM, so first of all, this bid end date, bid opening date, bid life cycle, bid offer validity, that comes at the first 4 row. Then your ministry, department, organization, office name comes. Then this is the item category. This manpower outsourcing services. Basically, we hire all the manpower under this category only. And this contract period is defined at the time of creation of bid. Minimum average annual turnover, that is defined on the basis of your bid amount, AA and ES amount. Years of past experience required, that is usually 3 years. And MSE, startup, these are all mandatory now. One cannot ignore MSE exemption, one cannot ignore a startup exemption, that these are all mandatory. SHG, that is stands for a self-help group, that maybe some NGO. Document required from seller. In this we have asked for experience criteria, bidder turnover certificate requested in additional terms and condition. In case any bidder is seeking exemption from experience turnover criteria, the supporting documents to prove this eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer. Bid to RA enabled. RA means reverse auction. So bid to RA enabled is no, because in central government we do not opt for RA. As per CBC guideline, this reverse auction is not allowed. Reverse auction is a kind of post tender negotiation. So basically that should not be allowed. Time allowed for technical clarification during technical evaluation. Once your bid has opened, then you allow some time for responding the clarification by the buyer, by the seller. Usually that is 2 days. This is similar to shortfall document we seek from at CPP portal. Estimated bid value, that is already your suppose we have this is for I think 2 manpower. कितने का है ये? Number of manpower? 2. This is for 2 manpower under skilled category. Unskilled है? Under unskilled category. So this amount will be driven by your NES amount. EMD required, that is no. EPBG required, no. And below 5 lakh amount, EPBG and EMD both are not required at GEM. Splitting is not required. And MSE purchase preference, that is yes. You have to opt for it. And whatever, see, these are the text you are seeing here, right? 1, 2, 3, 4, 5, whatever things are here. These are all the custom bid. This one. You have to select all the parameters through custom bid, buyer added terms and condition. So this is similar to this one, CPP portal bids. So all the things are now included here. Initially, when GEM was launched, so much of facility was not there. Now they have added everyone, most of the facilities here. And now see the skill category, type of function, list of profiles, educational qualification, specialization, post graduation, specialization for PG, experience, state, zip code. So these are the technical aspects for a manpower. So we have given only 3, this one, skill category, unskilled, type of function, others, list of profiles, Mali gardener. You can write whatever you want as per your custom requirement. Add-ons, we have not added. Designation is the gardening. So here, this is the name of consignee, address, number of resources to be hired, this is 2. And whatever your this one CLC rates are there, those things are to be included here. In the last row, last column, additional requirement, you can see minimum daily wage
ELDI bonus, EPF admin, optional allowance 2, optional allowance 3, number of working days in a month, that is, as per CLC, this is 26. PF per day that you have to derive, ESI you have to derive, tenure, duration of employment in months, that is 12. Now, here one thing is there, buyer added bid a specific scope of work. So this you can insert in your bid. Sorry, generic bidder financial man. standing. The bidder should not be under liquidation, court receivership, or similar proceedings, should not be bankrupt. Bidder to upload undertaking to this effect with bid. So such kind of criteria you can add in your bid to select or reject any, because we received so many bidders for this bid we received I think around 70 bids. So such kind of criteria you can add to filter out the sincere bidder. These are the generic criteria. This will come under this one when we create the bid. This all title, generic financial criteria, certificates, buyer added etc, past project experience, this all will come. So after this I will start the creating bid through live demonstration. I hope this browser is visible now. gem.gov.in. लॉगिन लॉगिन कर रहा है क्या? विजय कर रहा है, बोलिए अभी नहीं करेंगे, सैंक्शन ऑर्डर जनरेट करके इसको लाइव में दिखा देंगे तो now I will first of all explain the broad content under each tab. Like we go to dashboard. First of all, after you log in as a buyer, this under dashboard you can see product orders, service orders, all demands, bills, bulk payment update, incidents, all cards, request, gem availability report. So under product order we can see all contracts. So you can see here, this we have taken IT cartridge, OEM ribbon cartridge. This is I think color toner for HP printer. Again we have taken HP toner. Again we have taken HP toner through gem. Again some we have taken compatible cartridges.
We have taken this contract. We can see this is the BOQ bidding. So 25 kVA diesel generator set we have procured. AquaGuard portable water purifier. This computer we have procured. This again computer of lower configuration we have procured. This messenger bag we have procured. All three, we can see all whatever supply order you have given, that will come under your product orders. Then again, service orders we can see. So this is the service order for DPR printing we have given. One order. First order is of 22,550. Second order is of 3,27,600. Fourth order is 2,88,000. So like this, we have given services order also. This manpower services we have given. So this is the MTS hiring of manpower services for MTS. This is the consignee name and all the financial approval, sanction order, contract orders. These are all there. So once you, this is very important, all demands. When you add a product under your cart, that will be valid for 10 days, and that you can see under this tab, all demands tab. Here request offer validity extension also comes here. For this is for hiring a vehicle. I think someone was asking in the forenoon session about offer validity. So this feature is there. Either you can decline demand or process demand. That feature is also there. Now under incidents, you can raise incident or so these are all incidents that is logged under buyer's login. And if you want to create any incident, new incident, that you can create from here, new. This is for bid or contract. So suppose contract against supply order. Now we have to search the contract. Whatever supply order has been given under your login as a buyer, that will come here. So see, all the contract is displayed here. This I will not go further because this is the live this one. Otherwise, incident will be created. So, anyone having issue or having query till this point? No, sir, please. Sir, just I wanted to have one question. Sir, please. Can we have annual rate contract for taxi kind of things like we use
annual rate contract for conducting field work or visit to various departments. So normally it is for the 1 year annual rate contract we make. And so is it possible to have such kind of contract through GEM? Sir, you are from GSI or some scientific organization? It's a scientific organization. Okay, okay, okay. The I think field work is very common, so people go to field No. very frequently. till And now I the have field not area seen is any not provision. very fixed. Sometimes it can be in the UP, sometimes it can be Punjab or any place it can be. Okay. So, so how to do this annual rate contract for taxis? And we have various regional centers also. So annual rate contract we make at headquarters also, and as well as at our regional centers like Kakinada, Guwahati, many other places. So is it possible to do this annual rate contract through GEM? One thing, sir, I will suggest you, because you create a bid for, like, you hire the services for longer duration. You can hire the services for 3 years, 2 years, but direct rate contract feature is not available, I think, as far as my knowledge is concerned. I have not come across this rate contract feature here. Yeah, because here you have given like a monthly basis cab. Yeah. It is not a daily use is not there in our case. So sometimes it may be once I in can- 10 Yeah, days. can I add something here? Hello, sir. हाँ 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 श्रीनिवास बताइए. Actually, exactly the same thing we have done in NWA. We also do rate contracts. We use the vehicle whenever we require. Yeah. So Through GEM. no. We have not done through GEM. We have done it through CPP, online tender. Yeah, Because as and when in GEM, required. as such facility is not available. So we have done it through CPP portal. Yeah, that we are doing regularly, annual rate contract. Not only for this, even for chemicals, glassware. That is what I wanted to know, that whether it is possible through GEM. सर मैं think, कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या सर सम पॉइंट? हाँ हाँ प्लीज. सर एज एंड व्हेन बेसिस पर जेम पे सर्विसेज हैं, यदि आप पर्टिकुलर 1 डे 2 डे या 5 डेज के टूर प्रोग्राम में यदि आप सर्विस लेना चाहते हैं तो आप इजीली एक ही आपका ऑर्डर बनेगा, उसमें आप 5 डे 6 डे या जितना भी टाइम होगा, इस टाइप की सर्विसेज अवेलेबल हैं सर. नहीं, वो तो मतलब एट ए टाइम बेसिस में होगा ना. अगर मान लो मैं नेक्स्ट मंथ में दोबारा जाना है, दोबारा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा उसको. यस सर, बिल्कुल सर. दैट इज लाइक वेरी टीडियस. वो ऐसा नहीं है जो ये बोल रहा है राव सर जो बोल रहा है, लाइक वी आर गोइंग टू प्लेस ए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट. जरूरत पड़ेगी उसको बुलाएंगे, वो तो सिंपली आके जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा और बिल राइज करेगा. दैट इज वेरी सिंपल वन. यस, इट इज देयर लाइक व्हेनेवर वी रिक्वायर जिम में भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन एवरी टाइम द सेम प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड. वो तो बहुत टीडियस होगा. That also, every time if you place the order, it will not be there is no guarantee to go to the same Same vendor or vendor. some That is the other biggest vendor, and actually quality hurdle will be actually. also compromised. Yeah. If something can be worked out, that can be worked out through custom bidding. That can be explored. Okay. Custom bidding or BOQ bidding, you can say. Yeah, only through for that it can one be day. explored. Yeah, for 1 day we have to get the quotation, and then you can enter into an agreement for 2 years or 1 year, and you can add the custom feature under the bid. That can be done. Another kind of problem we face when we chemicals, because we do not know which chemicals will require at what time. And if we take the chemical or glassware catalog, it will contain thousands of items. Yeah. So as such, we cannot say that which item will require what. So in general, we give the some kind of a few items only we can quote, but as per requirement only we can place the order. So normally all these things we do through annual rate contract. So we do not know that how to do the customized bid for such kind of things. Yes. Done. It's not a big deal. The only thing is we have to finalize whether it will be like item wise L1 we have to finalize, or the cumulative L1 we have to decide. Even through GEM also it can be done through custom bidding. No, for item wise L1, that will be a splitting case. Now, can we give the same, like in one order? Can we give this one to different vendors?
नहीं दे तो सकते हैं सर, दिक्कत है ना जिम में प्रॉब्लम क्या है, लाइक आज जो वेंडर है कल नहीं मिलेगा, वही प्रॉब्लम है, वो कीप ऑन चेंज होता नहीं रहता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक जो सर का है ना क्वेरी कि रेट कॉन्ट्रैक्ट वाला, रेट कॉन्ट्रैक्ट तो बीओ की बिडिंग में सिंगल डे का लेके और उसमें लिख दिया जाए कि ये आपका बिड जो है ये 2 साल तक वैलिड होगा, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको ये देना है। जैसे नाइट हॉल्ट चार्ज होता है गाड़ी का, फिर आपका ये हो गया पीओएल चार्ज हो गया, फिर मंथली बेसिस जो पर डे बेसिस होता है हायरिंग का वो चार्ज हो गया। तो नहीं इन दैट केस सर कुमुलेटिव कर सकते हैं सर, जो कस्टम बिड करके हाँ वो मतलब जो भी आइटम्स होगा उसको। नहीं क्यूमुलेटिव में फिर तो वो तो सिंगल L1 हो गया ना। हाँ सिंगल एलवन हो जाएगा। सर टैक्सी के इसमें एक प्रॉब्लम और एक आता है कि पेट्रोल के रेट जो है, फ्यूल रेट दे चेंज वेरी बढ़ते फास्ट, करते हैं। तो इसीलिए जो है साल भर के लिए वो एग्री नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। हाँ सर। तो इसके लिए सर आप अपने एचओडी से एग्जाम्पशन ले सकते हैं, रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफलाइन कर लीजिए, मतलब ये सीपीबी पोर्टल पे कर No, लीजिए। that we are doing offline. We are doing for many things. Annual rate contract. Many Yeah, things yeah. we are doing. Chemicals, glassware, and for taxi we are doing many things. We are doing annual rate contract. Even we have annual rate contract for contractor basis, like for whitewashing of that is services, building Okay. maintenance, repairs, and even canteen facility. So all this we are doing through annual rate contracts. बट इस वजह से जो है वो टोटल अमाउंट जो एक्सपेंडिचर है उसमें जेम का अमाउंट थोड़ा सा कम हो कम जाता हो है। रहा है। यस यस। और जैसा आपने कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा 100% जेम के थ्रू होना है, सो सम ऑफ दिस प्रॉब्लम शुड गेट सॉल्व्ड, देन ओनली इट विल गो 100%. I think sir, we can give our feedback to concerned like nodal officer of the GEM, or directly we can address this concern to GEM portal. But I think we cannot wait actually because at the same time we are given budget also, so we have to show physical and financial progress also. right. I don't know how this will be achieved. These are practical things. When you work on GEM, there are a lot of things we come across. Sir, I want to ask about the printing stationery. Is that possible on JAM? Printing stationery. Just like there are so many stationery we are using on government works. So can it be possible just like dispatch register, receipt register, bills, water bill? Yeah, that can be done. That custom printing kind of option come. Sample printed register or something. Some option comes. Then Where you can take it is? under the GEM. You have to Just search it. I will show you one. This हाँ, one just contract order. आपने एक बोला था शायद प्रिंटिंग का किया था एक आपने। मैं अभी दिखाता हूँ। जी 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 जी। This will come under service. Yeah. Okay. Actually नहीं वो ये पूछ रहे हैं वो वाला जो प्रिंटिंग का है ना, इस वाला जैसे। एक प्रिंटिंग का ऑर्डर आया था अभी आपकी सर्विस में ना? अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ, आपने बोला था मेरे को। प्रिंटिंग वाला नहीं दिया। बिकॉज उसमें ऐसा रहेगा ना सर, प्रिंटिंग कराएंगे हम, उसके बाद उसका प्रूफ रीडिंग होगा, फिर तो उसका प्रूफ रीडिंग तो आप करवा सकते हैं ना, वो जो भी होगा लोकल वेंडर वो आपको दे देगा प्रूफ रीडिंग करके, जैसे उसने प्रिंट लिया आपको व्हाट्सएप कर देगा, ईमेल कर देगा। जी जी जी, वो मतलब राइटिंग में अप्रूव कराना पड़ेगा ना सर उससे, एंड यूजर से। जी जी जी। फिर देन ऑर्डर विल बी प्लेस्ड, या कैसे करना है उसको मतलब? अभी मैं दिखाता हूँ हमारा ये एक अल्टीमेटली देखिए क्या होता है कि ये सब चीजें जेम पे पॉसिबल है। अगर आप किसी वेंडर को नहीं जानते हैं
जी जी तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जी 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 तो आप जो है अब वेंडर ढूंढने जाएंगे या फिर अपना काम करेंगे, जी तो जी बेटर है जो आपका लोकल वेंडर है या तो उसको जेम पे ले आइए, नहीं तो अगर आप सीडब्ल्यूसी में काम करते हैं तो किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और डिवीजन में आप ढूंढिए कि वहां पे कोई जेम का वेंडर है, तो आप उससे वहां पे ले लीजिए अपने यहाँ पे। Actually, earlier there was a procedure to collect the printing from government press, that is या Chandigarh government press. हम्म। वो गवर्नमेंट प्रेस बंद हो गया, उसके बाद में देर इज ए लॉट प्रॉब्लम हाउ टू गेट द स्टेशनरी प्रिंटेड, एंड हायर अथॉरिटीज आर परसुइंग दैट आप इसको जैम पे करिए, जैम पे नॉट मीटिंग आउट सर द। एक्चुअली जैसे हम लोगों को भी वही सेम प्रेशर था, तो जी जी पिछले जी। साल से ही हमें आया हुआ है। हम लोगों अच्छा ने अच्छा। ढूंढ के दिल्ली से किया है। पहले तो ये ओपन, हम लोग के यहाँ पे डीपीआर प्रिंट होता है बेसिकली, जी 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 और जी। डीपीआर कम से कम 2000 पेज का है, सारा क्युमुलेटिव मिला के, राइट राइट 5-6 राइट। वॉल्यूम का एक, और कम से कम 12 कॉपी 15 कॉपी हमें प्रिंट कराना होता है। जी 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 जी। तो हमने ओपन टेंडर नहीं किया, हमने वो A3 साइज का प्रिंटिंग अलग रखा, A4 साइज का अलग रखा, वैसे करके ओके। और कंपैरिजन से हमने लिया जी। लेकिन वेंडर को हम जानते थे पहले से। अच्छा। तो आपको देखिए गवर्नमेंट का काम भी तो कराना है अल्टीमेटली। अगर किसी नॉन वेंडर को आप दे रहे हैं तो जेम हम्म। को ही तो प्रमोट कर रहे हैं, उसमें मतलब क्या इशू है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब वो, हम्म। अगर आप एकदम बाय रूल बुक जाएंगे तो गवर्नमेंट में कोई काम ही नहीं होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। मतलब ये जस्ट मैं वैसे, रूल तो बहुत सारे हैं, आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सारे रूल को गवर्नमेंट की वर्किंग के फेवर में करना है। जी 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 तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह जाते हैं, तो बड़ा सा पिक्चर हम देख नहीं पाते, जो मेरा अनुभव है। जी जी जी। देखिए आप ईटानगर में रह के अगर हम लोग कर सकते हैं तो हम्म। डेफिनेटली मेनलैंड पे हो सकता है। ईटानगर तो मतलब फार ईस्ट है आप फॉरेस्ट है। लगभग। राइट राइट राइट। तो किसी न किसी लोकल वेंडर को आपको सर ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, और 5-6 वेंडर आप ले आइए तो 5-6 वेंडर में ही कंपटीशन होगा। अब जी किसी जी एक वेंडर को मत दीजिए, आप 7-8 वेंडर को जेम पे ले आइए, तो एक जी जी। हेल्दी कंपटीशन भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और आप जीएफआर भी कंप्लाई कर लेंगे, जेम के जो रूल्स होते हैं उसको भी कंप्लाई कर लेंगे। जी जी जी। एक्चुअली वो पूरा टीम वर्क से होगा ना सर। आई एम सर अकेले तो नहीं आई एम होगा ये कंसाइनी टीम। बेसिकली। जी। आई एम प्रेजेंटिंग दी परचेज रिक्विजिशन, हाँ, and they say कि you put up the purchase requisition and then how the rates will be taken, because बिना proof के बिना sample के वो rate नहीं दे सकता। मतलब वो तो कैसे क्या पूरा लंबा चौड़ा मामला है मतलब। हाँ बेसिकली देखिए इन सेंट्रल वाटर कमीशन व्हाट हैपेंस कि हम लोग के यहाँ पे जेई से लेके एक्सीएन तक एक टीम में काम करते हैं। जी जी अब जी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं दूसरों का तो नहीं गारंटी लूंगा। तो जी जी अब हमारे यहाँ क्या करते हैं कि मैं खुद उसमें लगा रहता हूँ, वेंडर ढूंढना, या फिर हमारे जेई भी जाते हैं कभी, जैसे हम्म टूर पे गए तो वो अपने वेंडर को किसी से बात किया, फिर हम्म उनको इंकरेज करते हैं। बेसिकली हमारे दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो वेंडर हैं, मैं जी। उनसे लेता हूँ, अरुणाचल प्रदेश में कंसाइनी लोकेशन चेंज करा के लेता हूँ। तो अच्छा। अल्टीमेटली क्या है कि आपको काम तो गवर्नमेंट का ही करना है ना सर। जी जी जी। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है सर, अच्छा। और आगे भी ना आए, बिकॉज ऐसा लंबा रूल रेगुलेशन हमारे यहाँ, क्योंकि काफी जेम पे काम हो रहा है, और ई ऑफिस भी इम्प्लीमेंट हो गया है 2017 में। तो जी सीडब्ल्यूसी में ट्रांसपेरेंसी काफी इंट्रोड्यूस हो गई है, इवन एसडी वगैरह भी जिनको फाइल पे लिखना है लिख देते हैं कुछ भी। अगर जी जी। बाद में उसको कोई काउंटर करता है तो काउंटर कर सकता है, उसको AAO भी लिखते हैं। मतलब सबको लिबर्टी है कि आप लिखिए, लेकिन काम को मत रोकिए काम को मत रोकिए। वो सर। फिर रिकॉर्ड में भी आ जाता ना सर, मान लो वो किसी ई जूनियर ऑफिस में ने कोई रिकॉर्ड में बात आता कहनी है, है। और वो ऑडिट से भी आप बच जाते हैं सर, बिकॉज हाँ आप उसने जो भी रिकॉर्ड कर डिस्कशन। दिया जी तो उससे भी उसको भी ठीक हो गया, भाई मैंने अपना बात रख दी, उसके बाद आप कहते हो यू फोर्स मी टू डू जी डू दैट वे। जी। तो मेरे ख्याल से सर हम कर सकते हैं ऑन बोर्ड। अब मैं कहिएगा तो मैं और भी दिखाता हूँ। हमने एक जी वो स्पाइरल बाइंडिंग वाला नोटबुक लिया हुआ है, जो सीडब्ल्यूसी हेडक्वार्टर में पीसीपी लेता है। तो हमने यहाँ पे भी, बिकॉज हम जब डीपीआर के लिए जाते हैं तो काफी लोगों से मिलते हैं,
तो एटलीस्ट अच्छा। एक दो नोटबुक अगर हम स्पाइरल वाला दे देते हैं तो एक होता है कि कोई ट्रेनिंग कराना है, कुछ कराना है, तो एक राइट गुडविल राइट। जेस्चर भी है। तो अब और इसको ओई में हम बुक करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी प्लांट स्कीम के डिफरेंट हेड में, टेक्निकल हेड में बुक करते हैं, तो कर सकते हैं आई थिंक। ओके, आपको कहिए तो मैं और भी दिखा देता हूँ सर। नहीं ठीक है सर, कोई दिक्कत जी। नहीं, यू कंटिन्यू प्लीज। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें एक चीज पूछना है सर। हाँ हाँ। जैसे सर हम बीट क्रिएट करते हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट देते हैं और इन डेट देते हैं, लेकिन जब हम कुछ टाइम एवोल्यूशन में टाइम चला जाता है और बहुत सारा टाइम चला जाता है, जब फिर ऑर्डर देने की बात होता है तो सर वो पीरियड मतलब चला जाता है, आगे बढ़ जाता है, इन डेट के बाद भी चला जाता है। लेकिन हाँ, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने भी ऐसा किया है कि मार्च तक का लिया, अब जेम ने खुद ही क्रिएट कर दिया अप्रैल या मई तक का। जी जी जी। ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए आपने किसी को कहा कि तुम 12 महीने के लिए बिड करो, अब आप उसको अल्टीमेटली 9 महीने का ही बिड दे रहे हैं इफेक्टिवली। यस तो सर। जेम जो है बिडर के लिए फेवर में ये काम करता है, और ये हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो जेम जो अलाउ करता है हम वैसे बढ़ जाते हैं आगे। तो सर हमारा जो अप्रूवल होता है मार्च तक होता है, फिर हम उसको हार्ड कॉपी में भी एक मतलब एक फॉर्मल ऑर्डर एक और देना पड़ता है सर, कि यहाँ तक ही कॉन्ट्रैक्ट रखा जाए। हाँ, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन जेम वाला तो हम नहीं मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर। तो अभी हम एक नया बिड क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए एमटीएस का हम करते हैं। तो हमारे टीम में हमारे 2 जेई हैं, दोनों ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया है और दोनों को जेम पे काफी कमांड है। एक का नाम है विश्वेंद्र और एक है हरकेश। ये दोनों हमारे क्वालिफाइड हैं इंजीनियर, और दोनों बीटेक हैं, और दोनों का टीम स्पिरिट बहुत अच्छा है। मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपसे, फिर ये आप लोग भी इनसे जब भी है कुछ क्वेरी अगर है तो आप लोग इनका नंबर नोट कर लीजिएगा, ये आपको हेल्प कर देंगे। यस प्लीज स्पीक नंबर। ये हरकेश हैं, हरकेश राजस्थान से हैं, ये एनआईटी, सॉरी ये विश्वेंद्र हैं, विश्वेंद्र एनआईटी श्रीनगर से पढ़े हुए हैं, ये लास्ट ईयर एसएससी से ज्वाइन किया इन्होंने। और ये आप हरकेश हैं, ये आईआईटी रुड़की के बीटेक हैं, ये भी राजस्थान से हैं। तो ये एक हम लोग अभी बिड क्रिएट करते हैं, लाइव बिड। तो आई थिंक हम लोगों का क्वेरी जो है वहीं पे, जिसका जो क्वेरी होगा हम लोग ईपीएफ, ईडीएलआई, ईएसआई जो भी होता है हम लोग वहीं पे रिजॉल्व करेंगे अभी। मतलब इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको रखा है। यू प्लीज डिस्प्ले नंबर ऑफ देम, हाँ डेव, श्योर मोबाइल नंबर। अभी तो कल तक है, हम लोग बता देंगे आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। अरे केमिकल का बिड किया था सर। हेलो ये बात- हाँ हेलो। हाँ, बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ सर, एक केमिकल का बिड किया था सर जेम पे। उसमें क्या सर 43 आइटम थे सर। क्या क्या बिड किया? केमिकल सर, केमिकल। केमिकल का बिड तो अभी हमने नहीं किया है। नहीं, हमने नहीं किया सर, एक हमने ऑफिस में किया था माई डिवीजन गांधीनगर में। हाँ हाँ तो सर उसमें क्या 43 आइटम थे। हाँ हाँ। तो उसमें क्या जो L1 आया था सर, न तो वो एमएसएमई था, न मेक इन इंडिया का कोई अंडरटेकिंग वगैरह कुछ दिया नहीं था। अच्छा लेकिन एक रिक्वेस्ट आती है सर, जेएमई देता है कि वो L2 को प्रेफरेंस देता है कि यदि वो मेक इन इंडिया और एमएसएमई हो तो उसमें। हाँ, वो 50% हायर भी है तो कर सकता है। यस सर। लेकिन L2 को जब ये अपॉर्चुनिटी दी गई तो उसने उसमें एक कंडीशन और थी कि सर L1 के साथ में यदि रेट सेम मैच करने के लिए तैयार है तो उसको 50% तक जा सकता है उसको ऑर्डर। लेकिन यदि ये तो एमएसएमई का क्लॉज है, इसको तो करना ही पड़ेगा। यस सर, लेकिन L2 यदि एक्सेप्ट नहीं करता उसको प्रपोजल को, तो अच्छा तो L1 के पास में फिर वापस रिवर्स होता है, ओके L1 के पास ही जाएगा साथ सब कुछ। लेकिन L1 क्या करता है सर, वो सिर्फ 3 आइटम का ही ऑर्डर ले पा रहा है, बाकी सब अच्छा, बाकी आइटम। तो ये अलाउड है क्या? स्प्लिटिंग में नहीं आएगा ये चीज? ये सर ये तो स्प्लिटिंग में आएगा।
लेकिन सर L2 तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना सर L1 के साथ में रेट। अच्छा, तो आई थिंक एक एमएसएमई का ऑर्डर है कि आप ये 3 L1 3 करेगा और बाकी का क्या करेंगे फिर? बाकी का सर L2 एक्स, बाकी का सर अभी तक कोई, मैंने जैम को भी सर हेल्प डेस्क पे मैसेज किया लेकिन अभी तक कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है सर। तो इसको तो रीबिड कर सकते हैं, मतलब ये कैंसिल करके नया बिड डाल दीजिए। सर वो तो फिर फाइनल सॉल्यूशन वही है सर। क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारे यहाँ भी। हाँ संजय साहब बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ये संजय साहब ने हैंड रेज किया है, कोई क्वेरी है आपका? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, नो सर। हाँ हर केस शुरू करिए। सबसे पहले सर हम लोग यहाँ सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पे आप जो है मैन पावर सर्विसेज क्लिक टाइप करके सर्च कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ, मैन पावर में आइए, मिनिमम वेजेज में जाइए। हाँ बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? हेलो हेलो सर। हाँ सर ऐसा था कि हमारे जो फर्म ने सामान सप्लाई किया उसकी गारंटी 5 साल की थी। सर एक्चुअली आवाज इको हो रही है। एलईडी लाइट की गारंटी 5 साल की थी फर्म की, तो उसने 2 साल अभी हुए, उसके कोई 2 साल अभी हुए, उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा फर्म वाला। उबी साहब आवाज इको हो रही है आपकी, इको हो रही है आवाज। सर हमारा सामान आया था दिल्ली से, मगर उसमें से गारंटी उसकी थी 5 साल की जी, मगर 2 साल हो गए, फर्म 2 साल भी हुए, फर्म ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। क्या करें सर उसका, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सर वही इंसिडेंट रेज कर दीजिए। सर एक्सीडेंट भी कर दिया है। इंसिडेंट आप कंप्लेन जो है जेम पोर्टल पे इंसिडेंट रेज कर सकते हैं, मैंने अभी दिखाया था जी। तो सर वो फर्म रिस्पॉन्स ही नहीं कर। नहीं, वही इसी के लिए ना जेम को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली जेम को बताना पड़ेगा कि ये साहब हमने ऐसा किया है। ऑनलाइन इंसिडेंट रेज होगा जब जी हाँ हेलो जी। हाँ सर, ये जो मैन पावर के लिए हम लोग बिड करते हैं ना जैम पर सर हेलो, यस सर, बताइए सर। हाँ सर, इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है हमको सर हेलो। हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, जो हम लोग इसमें रेट प्राइस बिड एक फॉर्मेट हमारा दिया होता है, उस पे जो फर्म के जो रेट्स हैं उस पर नहीं आते और वो केवल एक एनुअल अमाउंट के शेप में उनका आता है प्राइस बिड। एक्चुअली सारे L1 आते हैं सर, इसमें वो सर्विस चार्ज जो होता है ना, सारे लोग 0.5% डाल देते हैं, तो सारे L1 होते हैं उसमें। जी नहीं सर, जो हमारा इसमें जो मंथली बेसिस पे जो हम लोग प्राइस बिड फॉर्मेट हमने बना रखा ना सर अपना ऑफिस का, जी तो वो उसके उस पर जो है अपने प्राइस कोड नहीं करते इसमें, और वो जो हमारा जो जैम से हम लोग फिर उसके लिए अलग से हमें एक उसका जो है क्या नाम थे इवोल्यूशन कमेटी इसके कंस्टिट्यूट करानी पड़ती है, फिर वो पता लगता है कि जो उन्होंने प्राइस उस पर दिया है और जो एक्चुअल में प्राइस बिड फॉर्मेट पे जो उन्होंने दिया रेट, दोनों में डिफरेंस रहता है काफी। तो सर आप जेम का जो है वो बना लीजिए ना, CLC का रेट यहाँ डाल दीजिए और जेम से जो एस्टिमेट एक बना लीजिए। अभी देखिए हम बना रहे हैं जैसे, इसी का आप इसी पे अप्रूवल लीजिए आप। क्योंकि सर ये हमारे को ना इसमें टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी कंस्टिट्यूट करनी पड़ती है, फिर फाइनेंशियल इवोल्यूशन कमेटी। ये चीज अगर हमारा टाइम इसमें से बचेगा, अगर ये ऑटोमेटिक अगर हो जाए कुछ, ये हमारा जैम के थ्रू हो जाए ना सर ये। हाँ अभी क्या होता है सर, जो फर्में हैं अब L1 आने के लिए केवल वो सेम अमाउंट डाल देती है जो हमारा एनुअली अमाउंट आता है ना सर, जी। वही अमाउंट वो इसमें फीड कर देते हैं, वो
सारी जो है मैक्सिमम फर्में जो है L1 में आ मैं जाती हैं। समझ गया सर, उसमें सारे L1 ही होते हैं और फिर जी, जी। सबको सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जी तो सर इसके लिए कुछ ऐसा जैम के थ्रू कुछ ऐसा हो जाए कि वो ऑटोमेटिक वो सब इसको देख ले इसको। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जेम तो उसमें एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे 70 बिड आए थे, जी हमने जी उनको फिल्टर आउट करके 6 या 7 बिड रखा था, और जी सातों बिड का जब फाइनेंशियल खुला तो सारे लोग L1 ही थे। जी तो L1 होने के बाद क्या करता है, जेम बोलता है कि आप आइदर आप सेलेक्ट करिए, जी और नहीं तो एक सिस्टम सेलेक्ट करेगा। रैंडम एल्गोरिदम है इसका कि वो किसी को भी पिक कर सकता है, तो जी जी उसको बोलते हैं सिस्टम L1 सिलेक्शन। जी जी तो आदमी जो है उसके बाद आप मतलब जो आपका मान लीजिए नॉन वेंडर है, आप देना चाहते हो, जी जो पहले से काम कर रहा हो, तो आप जी उसको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज जेम का ये थोड़ा सा है इशू। सर एक ही जैसे हम लोग ये प्राइवेट फॉर्मेट हमारा जो हमारा डिसाइड है ना सर, इस सर पे जो हम रेट मांगते हैं सर, मान लिया उसका जो हम फर्म से हम बाद में हम लोग मेल करके उनसे रेट मांगते हैं इस जी फॉर्मेट का, तो उनके रेट सबके डिफरेंट होते हैं। किसी का हाईली स्किल्ड करंट वाला होता है, किसी का ओल्ड वाला होता है, किसी का जो हमारा एक्चुअल होता है उसके से डिफर होता है थोड़ा सा। मेरा सर वही जी सजेशन जी है कि जी आप जो ये प्राइस बिट का फॉर्मेट आप मंगवाते हैं ना, जी जी आप उसको ले ही ना, आप CLC का रेट लीजिए, अनस्किल्ड और स्किल्ड का रेट ले लीजिए, जी और यहाँ पे जो नंबर ऑफ, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है अभी, कॉन्ट्रैक्ट जी स्टार्ट डेट, जी कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट, नंबर जी ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, हेलो। जी 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 टेन्योर ड्यूरेशन ऑफ जैसे एम्प्लॉयमेंट। आप जी लोग जी इधर करोगे मैं तो आप जब ये से जब कोई डालेंगे ना सर, तो सेलेक्ट कुमार ये बोल रहा हूँ। अपने आप जो है, ये तो CLC हेलो। का डिफाइंड रेट है, तो हम एक जी अलग से क्यों कर रहे हैं वो काम। मतलब जी मेरा सजेशन है कि वो जो आप मंगवाते हैं प्राइस बिड अलग से, जी वो मत मंगाइए। आप तो इसी का जो बिड वाला ये CLC का रेट लीजिए, उसमें जो EDLI होता है, बोनस, EPF, ESI, ये सब डाल के एस्टिमेट बना दीजिए। जी बिकॉज आप तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आप तो CLC के रेट से एस्टिमेट बनाएंगे, जी जी और CLC का हमेशा 2 साल में 2 बार रेट रिवाइज होता रहता है। जी जी तो मतलब मेरा जो CWC में जैसा होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो। जी हेलो, मैं जी जलपाईगुड़ी से स्कूटी इंजीनियर शैलेश हाँ कुमार सर बोल रहा ये हूँ। दिक्कत तो आ रहा है सर। एक चीज और है सर हमारा, सर सर जैसे मैं हमने जलपाईगुड़ी से शैलेश हेलो कुमार स्कूटी इंजीनियर बोल रहा सर, हूँ। जी हमने जी मार्च में एक सप्लाई ऑर्डर प्लेस किया था जैम के थ्रू। जी जी एक हमारी फाइल कैबिनेट का था हमारे सेंटर के लिए। जी। अभी तक सर वो जो उनको आइटम सप्लाई हुआ है वो डैमेज है, और फर्म को लेकिन वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सर हम क्या कर पाए, हम लोग वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं अभी। तो फोन नहीं उठा रहे तो उनको ये कह सकते हैं ना कि भाई आप ले जाओ, नहीं तो आपका आइटम हम स्क्रैप में वो कर रहे हैं। सर बोल तो दिया उनको, कई बार बोला, लेकिन वो आजकल तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब हाँ, तो कैसे किया जाए उसमें सर तो इसका? जेम को इंसिडेंट रेज कर दीजिए। जी इसमें जेम पे ऑनलाइन इंसिडेंट रेज करिए, और जो एक हमने बताया था कि उनके जो हायर फंक्शनरीज होते हैं, जी उसमें जो टेक्निकल किसी का नाम लेके उसमें देख के उसको भी जी कॉपी कर दीजिए, रिस्पॉन्ड करेंगे वो। जी सर एक चीज और था सर, सर अगर 5 लाख से कम तक की बिड हम लोग बिड सॉरी हम अगर हम परचेज करनी है कोई आइटम और वो जैम पर अवेलेबल नहीं है, जी तो उसको कैसे करेंगे सर उसको सर, वो परचेज? BOQ बिडिंग एक ऑप्शन आता है। जी BOQ बिडिंग में जिसका BOQ बिडिंग बेसिकली उसके लिए होता है जिस आइटम का कैटेगरी ऑलरेडी जेम पे नहीं क्रिएटेड है, तो जी उसके लिए BOQ बिडिंग होता है। जी जी ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, तो हम लोग ये बिड स्टार्ट करते हैं सर क्रिएशन का। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर इसमें एक चीज पूछना है सर कि अगर हम 3 साल का टेंडर क्रिएट करते हैं सर, जी तो मिनिमम वेज एक बार हम जो फिक्स कर दे रहे हैं सर, तो उसके बाद से अगर 6 महीने बाद मिनिमम वेज बढ़ रहा है तो सर उसके हाँ, वो लिए एक आएगा, अभी मैं बताता हूँ। कस्टम बिड में आता है एक ऑप्शन, मैं देखता हूँ अभी। सर इधर सर। शिव सर। हेलो। मैं शैलेश कुमार जलपाईगुड़ी से बोल रहा हूँ, स्कूटी इंजीनियर। जी 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 बताइए सर। ये हमारा जो क्वेरी है, जैसे हम लोग 3 साल का जो टेंडर करते हैं हम्म। और कुछ किए हुए हैं। अच्छा, शैलेश जी बोल रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ, शैलेश जी बताइए। हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट का है, हर एक 6 6 महीने में ना अपना रेट बढ़ाता है। हाँ हाँ। तो उसमें क्या किया जाएगा? ऑलरेडी टेंडर भी हो गया है।
नहीं तो इसमें तो एक कस्टम बिड में जो एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आप उसमें डाल सकते हैं एडिशनल एटीसी में कि जो है जब जब सीएलसी का रेट रिवाइज होगा तो हम रिवाइज रेट पे करेंगे। नहीं तो वो तो सामने वाला तो कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो रिवाइज कर रहा है, लेकिन फंड तो लिमिट है ना। तो फंड के लिए आपको एक अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना। कर दिया है इस बार से क्या है हमारा, जब पिछले मंथ में जुलाई में बढ़ गया है। नहीं तो उसका अप्रूवल तो आपको लेना ही पड़ेगा। कोई भी मान लीजिए एक्स अमाउंट का आपने अप्रूवल पहले लिया है और आप x+1 अमाउंट आपको पे करना है, आप पे कर रहे हैं, तो उसका कोई भी चीज का अप्रूवल तो आप लेंगे ना। डेविएशन हो गया ये। अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा था कि ये इसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा। जी जी, वो आप उसका ले सकते हैं ऊपर से लोग, मतलब जो वन हायर से या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहां तक जाएगा और वो अप्रूव करके आपको देंगे, तो आप दे सकते हैं पेमेंट। सर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ सर, कर सकता हूँ क्या? हाँ प्लीज। जैसा सर हम जैसे एस्टिमेट बनाते हैं तो हम लगभग 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट रखते हैं सर इस टाइम पे जी। और जब हम टेंडर ओपन करते हैं तो 0.5% पे जेम वाले सारे रहते हैं, तो हमें 9.5% का मार्जिन रहता है सर ओवरऑल एस्टिमेटेड वैल्यूज में। ठीक है। और जो जेम का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है सर उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि आपको वेजेस एक्चुअल से आपको पेमेंट करना है। तो विदिन मेरा नॉलेज है सर 2% या 3% के आसपास दिए पड़ता है ईच एंड एवरी ईयर, तो वो विदिन मार्जिन में हमारे एस्टिमेट के आ जाता है सर, तो हम उनको बढ़ा के लेकिन इसमें क्या है गिरिराज जी कि आप जो फाइनेंशियल बिड एक्सेप्टेंस तो आपने फिर चेयरमैन से लिया, जिसके भी पावर में है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का लिया ना फिर फाइनली एक्सेप्टेंस, फिर आप तो उससे डेबिट ही कर रहे हैं। जो हमने ANDS किया था वो तो हमने शुरुआत में पहले ANDS तो फुल उसका लिया था एस्टिमेटेड वैल्यूज का, उतना तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है उतना का, क्योंकि उस टाइम वो तो है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो भी चेयरमैन के पावर में है और जो दिल्ली से अप्रूव होके आता है ना, एक बार दिल्ली दिखा लेना चाहिए। ओके सर। ठीक, तो एक बार हम लोग चीफ साहब से बात करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। जी जी। और उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लेते हैं 10% की जगह 7.5% लेना है। अभी शायद घट गया है, नया जो CPWD मैनुअल है। हाँ 7.5 जगह पर 7.5। अखिल सर पाटीदार बोल रहा हूँ। जी सर, बताइए सर। सर हम लोग जो ये TC वगैरह करते हैं, जैसे टेक्निकल बिड ओपन करते हैं, उसके बाद में जब जो एक्चुअल जो फाइल चेयरमैन से के आ गई टेक्निकल बिड के बाद में फिर जेम में वापस जाती है, और जो रिजेक्ट हो जाते हैं फिर उनको जेम 48 आवर्स का टाइम देता है। हाँ। हमको वही प्रोसेस करके फिर वापस फाइल चेयरमैन तक भेजना पड़ती है। इस प्रोसेस में अगर TC जो लोग डबल वापस आए हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट दिया है उनको लेना और नहीं लेना TC के नहीं, इसमें तो देखिए क्या है कि एक टेक्निकल इवैल्यूएशन आपने शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट करके कर लिया, तो जो लास्ट मोमेंट पे देता है ना, लास्ट मोमेंट पे जो देता है वो तो जेम का है। तो उस केस में क्या है कि अगर आप फिर से जाएंगे तो बिड वैलिडिटी एक्सटेंशन वगैरह पूरा करना पड़ेगा। तो आप जब फाइनेंशियल बिड खोल के देंगे ना उनको, तो उसमें वो सारा चीज कवर हो जाएगा। लेकिन सर वो वापिस जैसे पहले 10 लोग क्वालिफाई हो रहे थे, बाद में फिर और 5 और ऐड हो गए, 15 हो गए, तो फिर 5 एक्स्ट्रा जिन्होंने रिप्रेजेंट दिया उनको ऐसी कंसीडर करके फिर चेयरमैन के पास अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के। अरे तो लेकिन आपने कोई बायसनेस तो नहीं किया ना, 10 में से 15 हो गए तो और अच्छी बात है कि 15 लोगों के कंपटीशन में वो जो L1 आ रहा है फाइनेंशियल बिड जिसका आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो 15 लोगों के इसमें आ रहा है। सर हमारा प्रोसेस तो और उसमें टाइम तो ज्यादा ही हो रहा है ना सर, उसी प्रोसेस को। नहीं, मेरा तो इसमें ये मानना है पाटीदार साहब कि फाइनेंशियल बिड जब हम भेजेंगे ना एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसमें ये सारा चीज कवर हो जाएगा। हेलो सर। तो ये हमने भी अभी ऐसा किया है और हमने फाइनेंशियल बिड खोल के भेज दिया, क्योंकि पहले 4 हो रहा था, 5 हो गया। नहीं, उसका कहना ये है सर। हेलो, किसी का एको आ रहा है। हाँ बोलिए श्रीनिवास। ये इनके माइक चालू है। सर कहना ये है कि वो 5 लोग जो आए हम उसको फाइनेंशियल ओपन नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल को फिर वापस उसको टेक्निकल बिड को ही वापस भेजना है। नहीं, पाटीदार साहब, ये इशू ये है, मान लो आपने
अप्रूव करना अलग बात है, उसके पहले एवोल्यूशन करना पड़ेगा टेक्निकल बिट्स का, उसका एक कमिटी होगा, टेक्निकल एवोल्यूशन कमिटी जो भी है। Evaluation तो लेट्स से वी हैव गॉट 20 बिट्स, आउट ऑफ 20 15 क्वालिफाई हो गया और 5 का कुछ इश्यू पेंडिंग है, तो 5 का हमने उसको 24 आवर्स टाइम देना होगा जो भी शॉर्टफॉल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अगर 24 आवर्स के अंदर डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट किया, वो सारा डॉक्यूमेंट्स दोबारा कलेक्ट करके दोबारा टेंडर एवोल्यूशन कमेटी के सामने रखना होगा, एंड द कमिटी विल अगेन स्क्रूटनाइज द बिड्स, और सेकंड स्टेज में दोबारा उसको कुछ मतलब बता देगा उसमें 5 में कितना एलिजिबल हो गया कितना नहीं हो गया करके, एंड आफ्टर दैट द कंसोलिडेटेड प्रपोजल शुड बी सेंट टू कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। अभी क्या है, जिनके थ्रू एक स्टेज में नहीं हो रहा है किसी का भी एवोल्यूशन, दे हैव टू डू एटलीस्ट 2-3 स्टेजेस। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे हमने टीसी फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम टीसी करने के बाद में हमने उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया, वही मैं बोल रहा हूँ, अप्रूव के उसके नहीं बाद भेजना में है। वो अप्रूव होने के बाद में फिर वापस वो तो जेब में जाएगा। अगर आप पहले मांग लेंगे तब भी 48 आवर्स देगा, बाद में मांगेंगे तब भी 48 आवर्स देगा, 2 बार ये तो प्रोसेस करना ही पड़ेगी आपको सर। नहीं तो वो देखिए पाटीदार साहब, 2 ऑप्शन है, या तो दोनों काम करके ही उसको हाँ भेजिए। मैं वही बोल रहा था, हम तो वही करते हैं, दोनों साथ में करके ही भेज देते हैं जी सर। वो हम कैसे, वो बाकी के जो एक बार हम करेंगे तो फिर वहां से आकर डबल फिर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद भी नहीं करना। नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्यों जाएगा, कमिटी होगा ना ये टीसी करने के लिए। कमिटी होगा, यस। टीसी को तो सर वो नहीं है सर हमारे यहाँ, तो नहीं हम नहीं, तो वो टीसी मैंडेटरी है एक्चुअली जिम के हिसाब से। सर मुला सर गिरिराज, आप लाइन पे हो, मुला सर बताइए सर थोड़ा सा। सर का आदित्य है क्या? हाँ सर वो भी है सर। हाँ नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है, और वो भी आप उसके अंडर काम करे, उसका नाम क्या है आपका, सो कॉल्ड चीफ इंजीनियर। टीसी कॉन्स्टिट्यूटेड है सर, हर हाँ, हाँ। ईच एंड एवरी अबव 25,000 इवन बिलो 25,000 टीसी हम जैम के थ्रू हमेशा करते हैं सर। सर का कहना ये है सर, टीसी तो ऑलरेडी है सर, कि जैसे हमने जो पहला टेक्निकल एवोल्यूशन किया सर, हाँ तो उस स्टेज में जो बिडर डिस्क्वालीफाइड हुए हाँ, उसका अप्रूवल हम चेयरमैन से लेते हैं सर अभी, और उसके बाद जब हम उनको डिस्क्वालीफाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट किसी का रिप्रेजेंटेशन आता है, तब टीसी अगेन कंसीडर करके फिर अप्रूवल चेयरमैन। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा था, उसको मान लो आपने टीएसी कर दिया, दोबारा उसको तुरंत चेयरमैन के पास भेजने की जरूरत नहीं है सर। तो इसका अप्रूवल कौन देगा सर कि वो अप्रूवल, मतलब वो जो आपका जो कमिटी होगा उसी ने बताएगा ना उसमें कौन एलिजिबल है कौन नहीं है करके। हाँ सर, कमेटी का फिर जो अथॉरिटी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो तो चेयरमैन सर के पास जाती है। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा था, अगर एक्चुअली सर इसमें डायरेक्टर फाइनेंस ने बीच में एक ऑब्जर्वेशन लगाया था कि पहले आपके पास 11 थे क्वालिफाई, फिर आपने डबल लिया, उसमें आप 14 हो गए, तो 3 को आपने किस बेस पे अब वापिस कंसीडर कर लिया फाइनेंशियल के लिए? वो तो जिम में क्लियर है ना, मतलब सबको मौका देना है, इवन रिजेक्ट करने के बाद भी उसको टाइम देना है। अगर वो कुछ रिप्रेजेंट किया, उसके डॉक्यूमेंट को दोबारा कमिटी के सामने रख दीजिए, एंड इफ कमिटी फील्स दैट द डॉक्यूमेंट्स आर। हाँ आदित्य बताइए। हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, माय सेल्फ। हाँ बताइए मोला साहब, पता है सबको आप। Yes sir, yes sir, yes sir. Sir, actually, why, what is the issue behind this is, sir, actually, TEC, Tender Evaluation Committee, as per the GF, whatever the constitutions, it has no power to approve the things, because it has only the power to recommend our. That's true. That is true. I agree that. That is why you are putting up to chairman. Yes, sir. And number one, I just want to raise another issue also, sir, that these clarifications which we are raising, GEM, actually it has been also pointed out by Director of Finance also, in a way that whatever these representations in our supervisory staff bid which we have done, whether it is in tune with the, whether it is in conformity with the GFR and CBC guidelines and other things, because he has also raised one objection also in this regard. So that in this process, when the file has went to Director of Finance, so he has asked this process of seeking the clarifications after the approval getting also, whether it is in conformity with the CBC and other guidelines, extent rules and procedures. Then we have gone through the GEM terms and conditions. It has been also in line with CBC conveyed, so we have conveyed that, sir. So in this also, they have also raised the clarification type, how these representations, challenges, and whatever these things, these is a part of the procedure of the normal mode of procurement or not. This is what the observation made by Director of Finance. नहीं, डायरेक्टर फाइनेंस कुछ भी बोलता है, वो जो बोल रहा है वो सही है गलत है वो भी एक बार सोचना है।
But here, what I'm would like to submit that, yeah, suppose if you take any particular tender, if you have got 20 bids, and out of 20, let's say only 15 got qualified, and you don't have to send directly to chairman to get the approval for those 15, and just give time for those five other bidders also, and let them represent, and place again those documents before the committee. Why? Because till now you have taken any approval, and both the proposals, stage 1 TAC और stage 2 TAC, दोनों का proposal एक साथ भेजिए chairman के पास. उसमें कौन सा गलत किया आपने? ये सही है. You have not approved ना anything. Still it is not approved. Committee ने recommend किया बस. It is not approved. Hello, sir. Only thing is you are doing tender evaluation in 2 stages. That's it. Stage 1, stage 2. और कुछ नहीं है. सर अब दोनों इकट्ठा भेज दीजिए chairman के पास अप्रूवल में. उसमें कौन सा गलत किया हमने? सर उसमें केस एक क्यों आता सर कि एक ऐसा ही केस हमने भेजा था सुपरवाइजरी का, मान ली रिजेक्ट कर देते तो वहां से उनके डायरेक्टर थे. हेलो सर. सर एक हमारा केस था, उसमें क्या कि हमने BOQ लगाया था टूल बैग का, 30,000 की हमारी अमाउंट थी, और जो कोटेशन आई है वो आई है 68,000. उसका क्या करें सर? क्या बोला आपने? 30,000 क्या सर है? हमने BOQ लगाया था टूल बैग का, तो उसमें सर हमारी जो रेट था वो रहा था 30,000 हमारी अमाउंट जो थी, 68,000. अब उसका सर क्या करें? एक्चुअली थोड़ी आपकी आवाज सर क्लियर नहीं आ रही है. आवाज ब्रेक हो रहा है. कैन यू रिपीट इट? और मैं इनकी बात रिपीट करता हूँ. इनका कहना यह है कि इन्होंने एक बिड लगाई थी टूल किट की. उसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट था इनका 30,000 था. लेकिन उसका जो L1 आया वो आया 68,000. नाउ हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट, ही इज आस्किंग दैट. नहीं तो फिर अब जो नया मतलब ये टेंडर कैंसिल होगा और नया एस्टीमेट जो है वो आपका L1 वाला प्राइस होगा, फिर आप उससे लीजिए. ओके. Actually, for 68,000 will be the estimated cost. क्योंकि अब जब आपको प्राइस जो है, जो टूल आपको 30,000 में चाहिए था, अगर वो मिल ही नहीं रहा है, या तो फिर रीबिड करके देखिए. दूसरी बार बिड करने के बाद भी अगर ऐसा कुछ होता है. And can I add something? We have faced the same issue in NWA. Actually, किसी का L1 is almost 50% higher than estimated cost. Right. Then we have again floated it. Again the same thing has happened. Then we have put the reasons. हमने जो भी किया है ऑनलाइन में किया है, that is transparent bidding करके, and we have put up to Director Finance. He has concurred it. Even though it is more 50% higher than the estimated value. But यहाँ पे 100% higher है. उस कर सकते हैं. अगर मान लो 2-3 बार भी किया और वो भी आया तो अब कोई रास्ता नहीं है सर. There could be 2 reasons. Our estimation could be on lower side. और उसमें कुछ ना कुछ गलती है. It may not be as per the market. तो शायद एस्टिमेट को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा. थोड़ा मैं ऐड कर सकता हूँ क्या सर? हाँ सर, जेम में एक ऑप्शन होता है नीड टू नेगोशिएट विद L1 आल्सो सर. उसमें एक कॉम्पिटिटिव, ये तो फिर रिवर्स ऑप्शन हो गया नेगोशिएशन. वो तो रिवर्स एक्शन हो गया, वो अलग चीज है. It is not allowed. As per CBC guideline, that negotiation of any kind is not allowed. सर उसमें डॉक्यूमेंटेशन है जेम में सर, उसका अप्रूवल लेके वो कर सकते हैं सर. देखिए वो PSU के लिए है. बेसिकली हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट प्योर हैं. वो PSU वगैरह में ना लोग रिवर्स ऑक्शन करते हैं, बिकॉज उनका रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल होता है. डॉक्यूमेंटेशन तो जेम पे बहुत सारी चीजों का है, तो हम पे जो अप्लाई होगा हम वही करेंगे ना. यहाँ पे हम मैन पावर के बिड में बिड ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट कंसाइनी ऐड करेंगे. ये आप अपना कोई कर लीजिए, ठीक है. एक नहीं, कितने हैं मैन पावर? 10 कर लीजिए. अगस्त कर लीजिए, मार्च तक कर लीजिए. मार्च 31 मार्च.
26 ये रेट डालिए। कितने मंथ का है टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मंथ्स? 3 4 7 कैसे आया? ये हम लोग अभी बिट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सेमी स्किल लेते हैं एज पर जो लेटेस्ट है। पीएफ कुछ है ना उसका? ये सही। एस्टिमेट की कॉपी नहीं तो अप्रूवल लेते हैं। चलिए, बोनस बोनस नहीं, अगर गवर्नमेंट देती है तो बोनस सब में अच्छा नहीं, तो अपने आप ऐड हो ये इसमें ऑप्शनल अलाउंस में जो हम लोग कहते हैं कि अगर मैन पावर को टीए वगैरह देंगे हम, तो आप डाल सकते हैं रेट जो है। और बोनस जो है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो बोनस भी आप यहाँ दे सकते हैं। ये हम सेमी स्किल्ड में ले रहे हैं। यस, सेमी स्किल्ड है ये। स्किल्ड अदर्स में डालिए। नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो चलेगा। ITI कर दीजिए। स्पेशलाइजेशन छोड़ दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए नहीं, और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए, ठीक है, और नहीं चाहिए। Yes, yes, yes. Yes. अब यहाँ पे देखिए, आप बिट को अगर आप चाहते हैं कि लोकल स्टेट में ही रहे, तो जो सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्टर्ड एड्रेस है आप यहाँ पे डाल सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल। तो यहाँ पे हम डाल दीजिए अरुणाचल प्रदेश डालिए, तो 7911 अरुणाचल डालिए। अरुणाचल में पूरा कवर हो, ऐसे क्या एक ही जगह है अरुणाचल। हाँ, ये आ गया ना, बस। आसाम भी डाल दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो है, जब हम अरुणाचल रखते हैं तो कोई आ ही नहीं रहा है। तो अब ये एक इशू है कि यहाँ पे मैन पावर का अगर करना है तो यहाँ पे फिर ओपन रखना पड़ता है हमें। ओपन रखिए, आसाम करिए तो आसाम। नहीं, हटा दीजिए। उसको हटा दीजिए।
वो फिल्टर पूरा हटा देंगे। सर्च, वहां पे सर्च करिए। सर इसके जस्ट ऊपर जो फिल्टर है सर, वहां से उनको डिलीट कर दीजिए, जो अरुणाचल एंड असम लिखा है बस। यहाँ से दोनों को अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट करिए, किसी को भी नीचे आइए और नीचे आइए, कोई भी इसका इधर स्क्रॉल करिए, प्राइस देखिए, प्राइस एक बार दिखाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम लोगों ने जो 10 मैन पावर का लिया है तो प्राइस सबका वेरी कर रहा है। टोटल वैल्यू आप देखेंगे किसी का 16 लाख है, किसी का 16,93,000 है, किसी का 17,07,000 है। तो आप जो है इसमें लोएस्ट वन जो भी है आप इसको ऐड टू कार्ट करिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। और इसको हम बिड ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सारा फिल्टर करना है। अब ये हमने ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है तो हम एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन ये सब हम एज इट इज रखेंगे। इसको सेव करते हैं। जब ये ग्रीन हो जाए तो समझिए नेक्स्ट स्टेज के लिए आपको अलाउ कर रहा है ये। अब ये कंसाइनी का है, आपको यहाँ हमने कंसाइनी डाला हुआ है। नहीं डाउनलोड, कोई जरूरत नहीं इसकी जरूरत। हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए बिड ड्यूरेशन जो है आपको मिनिमम 10 डेज का है, 3 दिन का बिड। वैसे जेम पे 10 दिन का था पहले, अभी ये लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ, पहले तो 3 दिन का भी है। बट हमें 7 डेज रखना चाहिए, मिनिमम 7 डेज। और आप एडिट कर सकते हैं टाइम। और बिड ऑफर वैलिडिटी है, आप इसको मैक्सिमम रखिए 90 डेज, 80 डेज जो आ रहा है वही रखिए, बिकॉज गवर्नमेंट में टाइम लगता है थोड़ा अप्रूवल आने में। अब यहाँ पे देखिए जो डू यू वांट टू टेक दिस बिड टू आरए पोस्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन, तो हम लोग इसको इनवेरिएबली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको नो ही रखते हैं। और मैंने नहीं देखा किसी सेंटर में कि ये आरए वाला ऑप्शन लोग एक्टिवेट करते हैं। टाइम टू बी अलाउड टू द सेलर फॉर टेक्निकल क्लेरिफिकेशन, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे पाटीदार साहब आप, ये यहाँ पे 2 दिन का होता है मिनिमम। आप देखिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप जितना दे सके तो बेटर है। आप इसमें 3 दिन दे दीजिए, चेंज भी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो है आपका महीने का था 7 ना, तो 6.6 18 डेज ना, 7.6 ये अब यहाँ पे देखिए एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है ये आपके बिड अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो बिड अमाउंट जैसे हमने जो भी दिया है इसका 400% मैक्सिमम है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या था? 16,91,000। 16 लाख है ना, तो इसको 48 कर दीजिए या 60 कर दीजिए। 4 टाइम्स है ना, 60 ऐसे लिख दीजिए, साउंड ऑफ लिमिट में आना 60। फास्ट एक्सपीरियंस हम ज्यादा देंगे। यस
अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी मांगना है आप मांग लीजिए, और इस सिलेक्शन और यहाँ पे रिजेक्शन का ये आपका डॉक्यूमेंट जो है आपको काम आएगा। बट ये अब मैन पावर में OEM वगैरह की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए ATC जो है आप कितने भी ATC डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप रिक्वेस्टेड इन ATC, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि जब आप AA and ES ले रहे हो तो ATC का भी अप्रूवल आप ले लीजिए, बिकॉज डायरेक्टर फाइनेंस का हमारे यहाँ पे कहना है कि ATC हम अपने मन से नहीं डाल सकते, बिकॉज ATC जो होता है एक बिड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है, तो इसका भी अप्रूवल हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना चाहिए। ये स्टार्टअप और इसके लिए आपको देना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कि MSE जो होते हैं MSME वाले, उनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और टर्नओवर में इनको रिलैक्सेशन मिलता है, और स्टार्टअप में भी सेम पैरामीटर का है। अब आप देखिए यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिशियन ले रहे हैं तो हम उससे क्या क्या काम कराएंगे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप यहाँ पे ये सब पैरामीटर पहले नहीं था, ये सब आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि आप उससे क्या क्या काम लेना चाहते हैं, या तो PDF में अपलोड कर दीजिए यहाँ से, बट PDF में अपलोड करना मस्ट है। तो एक डॉक्यूमेंट हमने ऐसे डमी डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया। अभी देखिए यहाँ पे कस्टम बिड जो है, अब यहाँ पे देखिए जो ब्रेकअप ऑफ ESI EPF ये भी आप अपलोड कर सकते हैं, पहले ये ऑप्शन नहीं था। Buyer to upload undertaking that minimum wages indicated by him during bid creation are as per applicable minimum wages act। तो ये भी हम लोगों को अपलोड करना पड़ता है, एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। और अगर आप QCBS मेथड कर सकते हैं, QCBS हमारा जो मेनली टेक्निकल मैन पावर लेते हैं उसके लिए होता है, जो जेनरिक मैन पावर है उसके लिए QCBS हमें नहीं करना होता है, तो QCBS में नो रहेगा। लीस्ट कॉस्ट मेथड बेस्ड इवैल्यूएशन, तो आई थिंक ये हमारा जो है लीस्ट कॉस्ट वाला है, लेकिन इसमें हम टेक्निकल कोई मार्किंग सिस्टम नहीं रखते हैं, इसीलिए इसको हम नो करेंगे। प्रीबिड इंटरेक्शन रिक्वायर्ड, अगर आप चाहें तो प्रीबिड रख सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। अंडरटेकिंग तो कुछ कर देते हैं। सर यस सर, ये एक्सपीरियंस में 0 से 3 लिखा हुआ है, इसको सर कुछ मिनिमम अगर रखना है तो फिर 0 का भी हमको वही है, 3 साल वाले को भी वही दे। हाँ, तो आप 3 to 7 रख लीजिए, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही किया है। क्योंकि सर अभी जैसे ओबिंजन ड्राइवर्स के लिए हम ले रहे हैं, जी। तो उसमें 0 से 3 0 साल वाले एक्सपीरियंस वाले को क्या, उसको बोट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं, तो उसको क्या हम करेंगे उसको लेके। कम से कम हमारे लिए जो आदमी है ये, वो तो कम से कम वो चाहिए जो उस स्थिति में बोट को ड्राइव कर सके। तो मान लीजिए कोई स्टार्टअप आ गया, तब क्या करेंगे? सर अभी वही प्रॉब्लम है कि फिर ऐसे ऐसे आदमियों से कैसे काम करवा सकते। कुछ तो हमको चाहिए, मिनिमम 2 साल 3 साल कुछ तो चाहिए एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन इसमें अब विशेष भी थोड़ी रिस्की है सर, उस स्थिति में ओबिंजन ड्राइवर ढंग से वो इतने लोगों को साथ में लेके जाना है, करना है। तो हमने तो अभी 0 रखा था, तो मैंने उसको हटवाया, कम से कम 3 से 7 ही लगाया, लेकिन 0 3 इसमें कुछ तो चेंज होना चाहिए सर। मिनिमम, अगर मिनिमम की बात करते हैं तो फिर 0 से 3 नहीं होना चाहिए, मिनिमम 0 नहीं, मिनिमम 1 साल 2 साल ऐसा कुछ रखा जाए। तो उसको आप जो है ना कस्टम बिड में जैसे स्कोप ऑफ वर्क जो लिखेंगे ना, जॉब रिक्वायरमेंट, आप वहां पे लिख दीजिए, तो आपका दोनों चीज कंप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, जब आप उस पे जाएंगे ना, ये यहाँ पे आप देखिए कितना है, जैसे 2%, 3 करिए। ये तो
कितना होगा? डेजिग्नेशन देखिए STU, यहाँ पे लिखिए ऑफिस ऑफ पूरा, इसको फिर से करें या हम वो वर्ड पैड से ले लेते हैं, ये है ना, पेस्ट करिए, कंट्रोल V, वेरी गुड। अभी एक हम लोग बात कर रहे थे ना MSC वाला, जो आप एक साहब को कह रहे थे कि L1 जो है 3 आइटम दे पाएगा, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको ये अगर आप नो कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा नहीं। आपने MSC को पार्टिसिपेट करने तो दिया, लेकिन ये परचेज प्रेफरेंस आपने नहीं दिया। मैं इसको नो कर देता हूँ, बिकॉज मैन पावर यूजुअली इसमें MSC वगैरह बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, अगर आपको MSC का वो चाहिए तो इसने जेम ने कर दिया है कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा, तो बेटर है आप नोटिंग में अप्रूवल ले लें, तभी आप कर पाएंगे। तो यस कर दीजिए, सेफ रहेंगे आप। अभी देखिए यहाँ पे जो कस्टम बिड का है ना, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, अब आप देखिए ये जेनरिक चीजें हैं, जेनरिक है, OEM है, इंस्पेक्शन है, पेमेंट है, सैंपल क्लॉज है, फॉर्म्स ऑफ EMD है, फाइनेंशियल क्राइटेरिया है, स्कोप ऑफ वर्क है, बायर एडेड, स्कोप ऑफ सप्लाई है, परचेज प्रेफरेंस है, सर्टिफिकेट्स हैं, जो बायबैक है, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस है, बायर एडेड, बीट स्पेसिफिक ATC है, व्हीकल हायरिंग है। तो जो हम पे लागू होगा हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जेनरिक में। ये लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको कल करें क्या श्रीनिवास? यस सर। श्रीनिवास, इसको मैं बिट को सेव कर देता हूँ ड्राफ्ट, इसको कल करते हैं फिर। यही से ओपन हो जाएगा, कल सुबह मिलते हैं हम लोग फिर। इसको ड्राफ्ट में हमने सेव कर दिया है, क्योंकि ये ATC वाले में काफी टाइम कंज्यूमिंग है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। ओके, ओके, कल मिलते हैं फिर। हैव ए नाइस डे। 9 बजे करोगे, कितना धूप में खड़ा है। 48 आवर्स वाला वो क्या बोल